The kind of high that theater gives, no other medium gives you that. मुझे जॉब छोड़ने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए था. With time the problems change, the society changes. That's not great for art, no? The dirtiest of things also need to look cinematic on camera. The whole crux of it is to get them out of this, right? Get them back to theaters. Power आते ही हर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है. Liking or not is a matter of perspective. It's personal choice. बिस्तर से सो के उठने पे भी पूरे मेकअप किए हुए कैरेक्टर्स नहीं रहते थे. We need to come up with good stories instead of concepts based on marketing surveys. मंजिल पे फोकस रखो और अपना काम करते रहो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. Hello and welcome to We Are Art, a podcast for performing artists by performing artists. आज के हमारे जो गेस्ट हैं, he is a veteran. Yes, he's done it all. He's been there for a long time, and he's going to guide us through the changing times and dynamics of the entertainment industry. So let me welcome Rohit Tiwari on how has the Hindi film industry evolved. Let's have a look at this podcast. आज के हमारे जो गेस्ट हैं, he is a veteran. So he's been there for so long. He's changed so many roles, so many characters, and oh my god, I can't wait to introduce you to Mr. Rohit Tiwari. Rohit ji, thank you so much. Thank you. मैं उनको सर जी address करूँगा throughout the podcast because I have been trained to a certain extent under his theatre company, Theatre Walas, and that's how I started my theatre journey. So I'm very privileged. Thank you so much for finding time. Entirely my pleasure. It's Guru Purnima, as you said, so a wonderful occasion, and it's always good to see people who you have worked with, who started with you and then doing so well. So it gives a sense of pride and joy, and थोड़ा सा अपने आप को भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं. Your and ma'am, Sheetal ma'am's energy, it was like the guardian angel. हम जब सीख रहे थे थिएटर में, and it was like नहीं कुछ नहीं, रोहित सर संभालेंगे. It was like that. वो जो एक होता है ना, एक parental body, एक heavenly body ऊपर, that was you. So thank you so much for all the great teachings. Thank you for such kind words. मेरा शीतल का दोनों का ही always ये एक effort रहा है कि because where we come from, the different schools that we have worked with, वहाँ पे कहीं ना कहीं शुरुआत से एक वो जो ठोक बजा के सिखाने वाला जो फंडा रहता है वो रहता है. कुछ मामलों में सही भी होता है वो. But I think if it is a healthy environment, whether it's work, whether it's anything else, if the environment is healthy, people are enjoying it, then I think the output that comes out, or even if you forget about the output, जो मजा आता है काम करने में, at the end of the day you feel happy when you go back home. So I think that's always been the effort, and that's always what we try for. And absolutely, the positivity was radiated throughout the rehearsal space. Oh my god, we were so excited to come the next morning, and like rehearsal khatam kyun hoti thi? That's what I remember. Like khatam nahi honi chahiye, especially during Gal Kufrudi and Thespo and all. Oh my god. Ivo Kate. Phenomenal. So आज का जो हमारा episode है रोहित सर जी is about the evolution and the transformation of the entertainment industry. Okay. So because लोगों ने उतने मुंबई में सीजन्स भी नहीं देखे जितने आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे. शुरुआत से शुरू करते हैं. माय फर्स्ट एंड अर्जफुल क्वेश्चन इज, अगर आपको अपने यंगर सेल्फ से एक चीज कहनी है 10-15 साल पहले जो आप अभी बिलीव ही नहीं करते तब सुनते, तो ऐसी कोई चीज? मेरी जो एक थ्योरी बोल लो या एक लाइफ को लीड करने का, जीने का एक जो तरीका बोल लो, वो है. उसके हिसाब से आई वुड नॉट टेल एनीथिंग टू माय यंगर सेल्फ, बिकॉज इवन इफ आई टेल हिम टू डू एनीथिंग डिफरेंटली, आई वुड नॉट बी हियर, आई वुड नॉट हैव एंजॉयड दैट जर्नी. जो भी लर्निंग रही है वो एक्सपीरियंसेस से रही है. एक्सपीरियंसेस, एज आई ऑलवेज से, there is no bad experience. Every experience is a good experience. A good experience in conventional terms gives you happiness. A bad experience in conventional terms gives you learning. So there's no experience that is a bad experience. So जो भी जर्नी रही है, जो भी गलतियां की हैं, जो भी decisions लिए हैं, they've helped me learn a lot about life, about people, about myself. So
one thing that I might tell my younger self is that जो कि कॉलेज में है या स्कूल में है कि तू एक्टिंग लाइन में जाएगा. If I told him when he was in school or college, he would have never believed because I had no inclination towards acting. Oh, I never wanted to be an actor. As in, acting was not even in one of the career options that I had. That time, a small town like Indore, belonging to a middle class family. My father was in a government service, so a very Indian middle class family environment where you study and you look for a good job. got it. You search for a career option that is good enough. You never had something like you are striving to become the CEO of a company or a scientist or something. It is like you go for engineering or go for medical. If you clear your medicals, you become a doctor. If you go for engineering, you get a good job in some company. Wow. So acting was nowhere in the list because I remember 12th में उस समय एक बुक आई थी जिसका नाम था What After 10+2. Okay. It had a lot of career options. So many of my friends had picked that up. And it had a lot of options, but उसमें भी acting वगैरह का जो एक chunk था वो उस तक हम पहुंचे ही नहीं. We were just looking at MBA वाला part, we were looking at engineering वाला part. Maybe a few, the ones that were a little unconventional for us were something like a metallurgy or mining में engineering कर लिया, या something like a लेदर टेक्नोलॉजी में बीटेक कर लिया, या प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग टाइप्स, इस तरह के थे जो हमारे लिए अनकन्वेंशनल ऑप्शन थे, और बाकी लिस्ट वाज मैकेनिकल एंड सिविल एंड कंप्यूटर साइंस एंड ऑल. सो एक्टिंग वाज नेवर देयर. So how did it come about? It's a very long story. Just like a film, lot of ups and downs. I was destined to be an actor. It was never my first choice, but I was one of the choices. Acting की एक choice थी कि इसको लेना है. Because The profession chose you. the profession chose me. That's why I always tell that I was destined to be an actor because I always wanted to get into the army. So I tried SSB NDA के लिए 2-3 बार try किया. 12th के बाद didn't clear. I cleared the written. I went to Allahabad for my SSB, didn't clear it. Then उसके बाद once more I tried for NDA, but I didn't clear the written. Second, फिर उसके बाद college के बाद I tried for SSB. I cleared my written, went to Allahabad, couldn't clear the SSB. Then again I tried. That time मैंने बोला यार army option जो है इसकी जगह navy भर देते हैं. So I cleared my writtens. I went to Bangalore. I cleared my SSB. मेडिकल में थोड़ा बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, बट उसके बाद करके आई क्लियर्ड द सीरियस एग्जाम्स एंड आई जॉइंड IIM देहरादून in 1997. Oh wow! So you've served. I have not served. During the training itself, I started having problems because of a very old operation that I had, like in my childhood. I got a leave and then I went back home and then I was confused what to do. Then that time multimedia and animation was a very new thing. So I did a course in multimedia animation, 3D animation, Premiere, as in like editing and image editing were very new at that time. So I did that. Then I started teaching in the same institute. I taught there for a few years. Then I got to know of this 3D animation course that was happening near Chennai. That time it was Madras. So I did that 3 month residential program there. I finished my 3D animation. Then I came back. I taught in Indore for a while. Then I came to Bombay, 1999 or 2000. Oh wow! I worked here for 2-3 years as a graphic designer, multimedia designer. Then I went back to Indore. Then after that, I started a coffee shop of my own. Wow! Yes. ये कब? ये तो नहीं पता था. ये इंदौर में ही मैंने शुरू किया जब मैं मल्टीमीडिया और इस सबसे बोर हो गया, तो मैंने सोचा कि कॉफी शॉप खोलता हूँ मैं. तो मैंने एक छोटा सा, मतलब इतनी छोटा था कि उसमें सिर्फ 4 टेबल्स थी. तो कॉफी शॉप मैंने कुछ समय तक चलाया. देन उसके बाद मैं बीमार पड़ गया, मुझे डेंगू हो गया था एंड देयर वाज नो वन एल्स टू टेक केयर ऑफ दैट. तो फिर वो आई रेंटेड इट आउट. देन आई जॉइंड रेडियो एज अ रेडियो जॉकी. So I was with one station, then I shifted to another station. In between, while I was teaching in this institute, one of my students introduced me to theater. As in, we used to shoot videos just so that the students could have some data to work on. So that time there was no YouTube or nothing like that. ऐसे sample videos मिलना बहुत मुश्किल होता. और स्मार्टफोन्स भी नहीं. स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, वो कैमकॉर्डर छोटे वाले आ गए थे, लेकिन उससे डेटा को कन्वर्ट करो.
So me and few of other faculty, we uh, started giving assignments to students कि एक product लो, उसका एक video ad बनाओ, उसका एक print ad बनाओ, उसका एक radio jingle बनाओ, उसका एक website बनाओ, उसका एक presentation बनाओ. तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जब वीडियो एड बनाने की बात आती थी तो कोई एक्टर नहीं रहता था. ऑल स्टूडेंट्स यूज्ड टू हेजिटेट. So few of us faculties only started acting in front of the camera just for that, so that they will get some assignment for editing. Correct. तो उसमें फिर करते करते मजा आने लगा. few of my friends से कि नहीं यार अच्छा कर रहा है, इसमें करना चाहिए. मतलब एक्टिंग लाइन कहाँ, बॉम्बे कहाँ एक्टिंग, हम लोग के लिए थोड़ी है. फिर one of my students, पूजा शुक्ला, that was her name, she insisted कि there is a theater workshop happening, आप हो क्या, आपको मजा आए. I just happened to go one day, then I realized कि नहीं यार इंटरेस्टिंग है. I did that workshop. then उन्हीं के साथ किरण शानी नाम था उनका, इंदौर में ड्रामा स्कूल ऑफ इंडिया नाम से एक थिएटर ग्रुप है, उनके साथ थिएटर करना चालू कर दिया. सो व्हाइल आई स्टार्टेड माय कॉफी शॉप एंड आई वाज वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी, थिएटर had started and no side by side चलने लगा. And by 2008, while I was in my last job, corporate politics जो था उससे I got fed up. So I was trying to find a way out. And then suddenly another student of mine called me up कि there are auditions happening. Would you be interested? Should I send your name? That gave me a way out. I just resigned from my office. I said कि I'm selected for a television serial and I'm going to Bombay. But तभी तो आप सिर्फ ऑडिशन कर रहे थे. नहीं, मैंने ऑडिशन भी नहीं किया था. मुझे जॉब छोड़ने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए था. वाओ. मैंने बोला यार दिस इज इट. अब बॉम्बे एक्टिंग करनी है तो मुंबई जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वहीं पे सारा कुछ होता है. एनीवे आई हैव बीन स्विचिंग फ्रॉम वन करियर टू द अदर. लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल. तो वन फाइन डे आई रिजाइन. I think I still remember it was December, first week of December that I resigned. Leap of faith. Leap of faith. I have always, my decisions have been very instinctive. Sometimes I fall flat on my face also. But most of the times the thought is that जो होगा अच्छे के लिए होगा. और नहीं भी होगा तो कुछ समझ में आएगा कि ओके ठीक है. Because anyway, whatever I was doing, I could not see myself doing that for life. I loved teaching. I continued that for almost 5 to 7 years. And then when I joined theater, acting was the other thing that I realized that okay, I'm having maximum fun doing this. So that's how then I came to Mumbai in 2008 after jumping through all these Wow. springboards. That's how it happened. You have seen the world. We can. Yes. Oh my God. Almost. Let's speak about Crime Patrol because तभी से आप रूबरू हुए every household में. Like India's every household got to know you via Crime Patrol. मोटा मोटा. Yes. So जब Crime Patrol air हो रहा था, side by side आपने already theater वाला शुरू कर दिया था. So what is the motivation starting your own theater company while doing something for the television? As you have done theater, so you will know the kind of high that theater gives. No other medium gives you that high. When you're on stage, when you're performing, the fun that you have. Theater में एक मजा आता है. That whole process from the first day of the rehearsals to show day and all those things. So even when I came here in 2008, I worked with a lot of different theater groups in Prithvi, outside of Prithvi. So I worked with various theater groups during that time also, because उस समय तो OTT भी नहीं था. I came in 2008. So the only two mediums that we had were TV and films. There were not many casting directors at that time. Not that we had heard of. The trend was that we used to get pictures clicked, फिर उसके sets बनाते थे. उसमें या तो खुद ही प्रिंट कर देते थे email ID and phone number, या तो पीछे हाथ से लिख के. And then we'll show them 10 photos. They will pick, अच्छा ये ठीक है, ये दे दो 3-4 photos. Or otherwise we'll make the set of 3 or 4 of the best photos and then drop in at different production houses. उस समय भी when I was doing theater, वो एक इच्छा थी कि यार अपना खुद का कुछ करें. By the time Crime Patrol started, मुझे 4 साल हो चुके थे बॉम्बे में. थोड़ा सा एक बेस बन गया था. I had started knowing people, थोड़े से contacts हो गए थे. And plus, as I always say, Mumbai has been very kind to me, very friendly to me. I always found good people. So by 2012, I found this gentleman called as Madan Kotia. He has a building right opposite Lakshmi Industrial Estate. I approached him कि आपका basement खाली है तो हम लोग वहाँ पे कुछ theater activity करना चाहते हैं. So he was very kind. He said हाँ ठीक है चलो अपन करते हैं. And he started getting the platforms and all those things made कि चलो मैं भी help करता हूँ. But then for some reason we could not do it
in the basement, so we shifted to the terrace. He said, मेरा terrace पड़ा है, आप देख लो अगर आपको लगता है तो. So we started one of its kind, I think one of the first or the first alternative theatre spaces in Mumbai in 2012. It was called Overact. So a similar terrace space जिसमें एक थोड़ा सा covered area था जहाँ पे हमने शुरू किया. But when I started the space, the thing was that I need to get people to come and perform or rehearse. How do I do that? Make it lively. Make it lively. So I said, let me put up a production so that I can invite people and people will come and see, okay, this is one venue. One thing that I was very clear when we Theatre Wala's ka first jo seat tha, we started in Indore in 2007. But then within a year, I shifted to Mumbai. We were very clear from the day one that we will not do plays written by anyone else. Because the Hindi theatre scene in majority of India is still relying upon those plays written in the 60s and 70s. हिंदी में नए नाटक कोई नहीं कर रहा था, especially in small towns. Bombay, Delhi में तो फिर भी थोड़ी नई writing हो रही थी. One thing we had decided to do only original plays. So when this thing happened, Overact started, I said, "Chalo, theek hai, let's do an original." But we did not have any play. So I thought, "Chalo, let's write one." Yeah. So now you became a playwright. Playwright. So that's how Recharge at 99 came into existence. That was our flagship show. So I said, "Ki chalo, theek hai, kuch likhte hain." So I just wrote a short play around 35-40 minutes का, उस समय it was that. फिर by that time जो इंदौर के यहाँ पे भी काफी सारे एक्टर से पहचान हो गई थी. इंदौर के जो साथ के लोग थे वो लोगों की भी उन लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई थी, तो वो लोग भी सब most of them were from media, so their eventual destination was Mumbai for that. So they also landed up here. So I said, chalo theek hai, now I have enough people and I have a space. Nice. So that's how I started. And August I started Overact, and September is when I did my first ever Crime Patrol episode. So it almost went like so theatre. I had already started theatre a month back. Wow. So they both like coincided quite a lot. simultaneously, एक साथ ही. And how was it for the playwriting? क्योंकि आपने पहले तो I'm sure लिखा नहीं होगा, and suddenly to write for Recharge, did it directly come naturally to you, or you seeked inspiration, or कहाँ से आया, or what was it just experience? See, when I was in Indore, when we were experimenting, हम लोगों ने जो पहला play मैंने लिखा था, it was one improvisation exercise that we were doing, और उससे एक idea develop हुआ और उसी को फिर हमने play बनाया. Okay. So I was very clear I want to write a comedy. Okay. I want a play that is entertaining, because one more thing that I was fed up of, or I really blame the so-called Hindi theatre stalwarts, is making the Hindi theatre very boring. The audience, जो कि एक किसी भी एक आम आदमी से जो पूछोगे यार नाटक, उनको ये लगता है 2 घंटे बैठना पड़ेगा, भारी भारी डायलॉग्स होंगे, जोर जोर से चिल्ला के होगा. वो एक जो कारण था, वो हम लोगों ने कॉलेज में शुरू किया था, तो हमको खुद बहुत बोरिंग लगता था कि यार ये क्यों कर रहे हैं हम, किसी को मजा नहीं आ रहा. लेकिन वो एक बन गया था नॉर्म कि नहीं, आप ये जो सेट ऑफ प्लेज हैं, दीज आर लेजेंडरी प्लेज, दे आर वेरी गुड. अपने समय की सारी स्टोरी उस जिस जमाने में वो लिखे गए थे उसकी कहानी कहते हैं. लेकिन 20 years down the line, 30 years down the line, a college student, for him to relate to that becomes very difficult, because with time the problems change, the society changes. Yeah, obviously there will be certain issues, poverty will be poverty, but the way it was in 1960s and the way it is now, how you're dealing with unemployment in 1960s and how you're dealing it now has changed a lot. Yeah. So you should change with that. So वो एक चीज बहुत क्लियर थी, तो मैंने बोला कुछ कंटेम्परेरी लिखना है मुझे, कुछ एंटरटेनिंग लिखना है, बिकॉज आई वांट कि मैं पहले ऑडियंस जोड़ूं. Once I have an audience, then I can give them different things. Then I can make them think also by making a play about a very serious topic. So इसीलिए फिर I started, and वो मोबाइल वाला आइडिया जो था, just started writing. Within a few years एक first draft मेरे पास था, लोग थे उनके साथ काम किया, improvise, बहुत सारी चीजें होती गई, और करते 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 I think because 6th of August 2012 is when we started Overact, and 9th September is when we put up our first show. Not just about a month. A little more than a month. So I think within 15 days वो play लिख के rehearse करके और हमने first show कर दिया. और फिर वो जो confidence आया कि यार no, you can write and execute भी हो सकता है और लोगों को पसंद भी आ रहा है. Lot of credit to Sheetal, because most of my plays उनका जो एक basic seed है वो शीतल नहीं दिया.
लाइक ओसीडी जो प्ले था उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट एक आइडिया था, वन लाइनर, वो शीतल ने बोला कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पांडे। इंस्पेक्टर पांडे मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, तो इंस्पेक्टर पांडे मेरा आई थिंक दैट केम फ्रॉम योर थोड़ा from a lot of it came from डिफेंस। my defense का background. My brother is a cop, elder brother is a cop, तो उनकी जो स्टोरीज थी उससे आया। एंड पांडे का जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, इंस्पेक्टर पांडे फिर मर गया का इंस्पिरेशन था, वो था जो 26/11 का अटैक बॉम्बे में। दैट टाइम आई वाज हियर। उसके बाद न्यूज में जो हम लोग सारी चीजें पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, देयर वाज लॉट ऑफ न्यूज अबाउट people who could not make it and the amount of love and respect and everything that the government, the people were giving them, and they deserve that. But I was just wondering, what about the people who fought with those terrorists? Suppose the constables who were in that barricading when they caught Kasab, or maybe during the Trident or the Taj attacks and everything, but people who survived, the next day they were back on their duties. Somebody was at a traffic signal, somebody was sitting in a police station again, dealing with everyday things that are happening. I was just wondering what happened to those guys, what about them? And that's where the idea for Pandey really came, जो कि आखिरी में एंड जो उसका है उसमें होता भी है ये चीज, where his son says something about कि why are you doing still this. alive? If you had become a martyr, we would have benefited. Oh yeah, the series heavy. तो व्हाट अबाउट, तो उससे वो आइडिया आया था कि भाई जो बच गए हैं, जो जो जिन्होंने लड़ा पकड़ा, और अब कल से वो अगले दिन से वो वापस वही ट्रैफिक ड्यूटी पे खड़े हैं, और आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हो और अगर आपको पीछे जाने को बोल रहे हो तो आप उसको मन में गाली भी दे रहे होगे। तो वो एक थॉट था, तो वहां से आया। स्टोरीज बहुत सारी अपने भाई से मिली, बहुत सारे दूसरे लोगों से मिली, एक्सपीरियंसेस से। तो वो मैं बोल रहा था कि जैसे ओसीडी था उसका आइडिया शीतल ने दिया, एक दो और प्लेस का एक उसने एक सीट दिया कि यार ये वन लाइनर इस पे कुछ कर सकते हैं, देन उसको हमने डेवलप किया। So can the audience watch them anywhere currently? Are any of them live? We will be staging very soon. We're just figuring out our dates and venues for the season. But I think hopefully August or September we will be doing a new play that is called Medically Azam. That is a spoof on Mughal Azam. Wow. But all the characters are doctors. So it's a very medicinal play, which you can actually call laughter therapy. Nice. So is there any page that we can follow and get an We update? have the Instagram page by the name of Theatre Walas. It's WAALAS. So you told me about how Theatre Walas got started. तो आपका जो journey था from theatre to screen was within like what, a month from your first staging into the first हाँ. episode of Crime Patrol? First episode of Crime Patrol was even less than a month. 9 Wow. September and 20 दिन का था। वो कहते हैं कि आपको अलग तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, बिकॉज दे आर सो डिफरेंट। स्टेज की अलग तैयारी होती है, स्क्रीन की अलग तैयारी होती है। क्या आप सहमत हो इस बात से कि नॉट एग्जैक्टली कुछ टेक्निकलिटीज थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लाइक मे बी जैसे स्टेज पे एक बहुत सिंपल सी चीज रहती है, स्क्रीन पे आप कर रहे हो तो मोस्टली आपके माइक वगैरह लगा रहता है, तो आपका प्रोजेक्शन जो है उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको बहुत चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। स्टेज पे भी अक्सर जो लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर मुझे पीछे की रो तक पहुंचना है तो मैं चिल्लाने लगता हूँ। तो चिल्लाने में आपको इमोशन जो है, वो जो जो सीन का जो नोट है, सीन की जो इंटेंसिटी है, वो आपको मेंटेन रखनी है। इट्स ओनली अ वॉल्यूम दैट हैज टू इंक्रीज, नॉट द पिच, नॉट द इंटेंसिटी। होता यह है कि जहां पे भी हमको अगर विस्पर भी करना है, बट बिकॉज आई एम थिंकिंग कि यार नहीं, वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी, इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बी लाउड आई स्टार्ट गोइंग हेवायर। तो वो एक छोटी सी टेक्निकलिटी होगी। इमोशंस इसमें भी है, उसमें भी। टेक्निकल अगेन वो कि इफ अगर एक्सट्रीम क्लोजअप लगाया, क्लोजअप लगाया, तो वो कैमरामैन आपको बोल देगा कि सर गर्दन इधर मत कीजिएगा, इतनी सी आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मूव कर सकते। तो वो फिर एक वो हो जाता है कि मैं पूरा इंटेंस इमोशन में, जहां पे मैं, मेरे मुंह से थूक निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पसीना बह रहा है, और मैं एकदम इंटेंस रोल कर रहा हूँ, लेकिन कैमरामैन ने मुझे बोल दिया सर बस इतना ही हिलना है आपको। तो अब मैं वहां पे कैसे करूंगा? मैं यहीं पे मेरे को खाली इतना इतना करना, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीम क्लोजअप। स्टेज पे मैं पूरा, मतलब जो डिस्कवरी चैनल पे जैसे शेर दिखाते हैं कि ऐसे मुंह हिला रहा है, पूरा थ्री उड़ रहा है, वो सब कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीजें रहती है, बट इमोशन उसमें भी वही है, इसमें भी वही है।
असली चीज वही रहती है कि आपको सीन समझना, आपका कैरेक्टर समझना, उस पर्टिकुलर सीन का इंटेंसिटी, उसका मूड, उसकी एनर्जी, वो सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। देन स्टेज का और स्क्रीन का जो डिफरेंस रहता है, वो कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज रहती, अच्छा। विच इफ यू हैव वर्कड ऑन योर क्राफ्ट, जो कई सारी एक्सरसाइजेस जो बहुत सारे थिएटर स्कूल्स में, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स में, बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस में सिखाई जाती है, लेकिन कोई उसको बता नहीं पाता है कि उसका पर्पस क्या है। जो सबसे पहली एक्सरसाइज विच आई एम श्योर वेर एवर यू हैव गॉन इज दैट यू स्टार्ट वॉकिंग इन द रूम। हम्म। नाउ वॉक फास्ट, नाउ वॉक स्लो। 1 to 10 पेस। हाँ, पेस करो। हम्म। But if you ask, nobody will tell you कि why are you doing that. Similarly, there are a lot of voice exercise. But वो ये जो सारी चीजें रहती है, ये बॉडी है, वॉइस है, उनको समझने के लिए रहती है, सो दैट जब डायरेक्टर आपको बोले कि भाई थोड़ा लाउड हो रहा है, 10 पैसा कम कर दे, तो आपके दिमाग में वो समझ में तो आएगी 10 पैसा कम कर दे मतलब क्या करूं, 10 पैसा कैसे कम करूं मैं, मुझे कहाँ कम करना है। मैं अगर जब आप अपनी बॉडी को समझोगे, आप अपनी वॉइस को समझोगे कि अच्छा मैं इतना फैल रहा हूँ, या मैं इतना स्पीड से जा रहा हूँ, या मैं इतनी स्पीड से बात कर रहा हूँ, देन यू नो कि अच्छा ठीक है मैं कम कर सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ टेक्निकलिटीज रहती है, लेकिन अगर आप इमोशन सही पकड़ रहे हो, आप उस चीज को फील, जो उसका फील है, उसका इमोशन है, सीन को अगर आप सही समझ रहे हो और सही तरीके से डिलीवर कर रहे हो, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस, अनलेस आप एकदम वो टिपिकल कन्वेंशनल वाला थिएटर किए हो जहाँ पे आपको लाउड फिजिकल ऐसे मोमेंट्स ऐसे लाइक करते हैं, रामायण महाभारत पारसी थिएटर हो गया, या फिर नॉट इवन, आजकल तो पारसी भी नहीं, जो कन्वेंशनल पारसी थिएटर हुआ करता था, या उस तरह का जो थिएटर हुआ करता था जिसमें बहुत ही लाउड जेस्चर्स हो एंड इफ रहते यू आर थे, टू यूज्ड टू दैट तो हाँ प्रॉब्लम देन हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। सर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ आवर एपिसोड की ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती थी, आज ओटीटी के वजह से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हैज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस चेंज्ड कि अभी भी वही है? आई थिंक द एक्सपेक्टेशन वाज ऑलवेज द सेम। पहली चीज, दे हैव मोर ऑप्शंस नाउ, सो वो एक चेंज हुआ है। और दूसरा, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, एंड इफ आई मे यूज द वर्ड एनलाइटन आल्सो अ लिटिल, they now have a variety of choices, so they are picking up things that they like, but the expectation was always a good content। पहले भी अच्छा, अगर एक अच्छी कहानी है जिसको एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है तो वो हिट होती थी। अभी भी अगर एक अच्छी कहानी को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है तो हिट होती है। अभी हमने ये कर दिया है कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग द ऑडियंस डिसाइड, द मेकर्स आर डिसाइडिंग व्हाट द ऑडियंस विल लाइक एंड व्हाट द ऑडियंस विल नॉट। एंड व्हेन यू आर गेटिंग और मेकिंग अ स्टोरी, आप पहले कि नहीं नहीं ऑडियंस को ये नहीं पसंद आएगा, इसको हटाओ, ये नहीं पसंद आएगा, ऑब्वियसली कुछ केसेस में ये चॉइस करनी भी पड़ रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज बिजनेस। लेकिन पहले भी ऑडियंस को एक अच्छी कहानी, अच्छे तरीके से बताई गई कहानी देखनी थी, आज भी वही देखना है। हमारे बाद की जो जनरेशन थी, दे वर एक्सपोज टू बेटर कंटेंट, वैरायटी ऑफ कंटेंट। उसके बाद फिर और आगे जब हम पहुंचे, ओटीटी वाला पार्ट आया, ठीक है, तो ओटीटी के कारण एक फायदा ये हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ हिंदी ऑडियंस, अगर है तो उसको मलयालम सिनेमा का एक्सपोजर मिल रहा है, साउथ इंडियन है तो उसको बंगाली है, मराठी है, विच अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर कोई किसी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, या किसी फिल्म की कोई फिल्म हिट हो गई है, उसके बारे में बातचीत होती थी, लेकिन अदरवाइज जनरल कंटेंट ऐसा नहीं दिख रहा था। उसके अलावा नाउ व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज की मल्टीपल लैंग्वेजेस में डबिंग हो रही है, तो सेम कंटेंट 8 लैंग्वेज 10 लैंग्वेज के लोग देख पा रहे हैं। सो उसके कारण ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी भी वही है, गुड कंटेंट, गुड स्टोरी टोल्ड इफेक्टिवली। और आपका, आप कब रूबरू हुए थे ओटीटी से, एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन दिस होल लाइव स्ट्रीम वाज कमिंग अबाउट लाइक सम इनिशियली आई वाज आल्सो स्केप्टिकल। ओटीटी 16-17 से एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई थी, नेटफ्लिक्स का नाम आने लगा था, बाकी ओटीटीज भी थोड़े थोड़े कि भाई इंडिया में ये शुरू हो रहा है। मिर्जापुर का जब सीजन बनाया था तब मैंने पहली बार होर्डिंग्स देखे थे, और अमेजोन प्राइम पे आने वाला है ओटीटी का, वो चल रहा था। आई वाज आल्सो लिटिल स्केप्टिकल कि मैंने पता नहीं कितना चलेगा, बिकॉज आई हैड सीन द डॉट कॉम क्रैश, मैंने वो देखा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी जिसने उस समय 2001 में इवेंट्स का लाइव स्ट्रीमिंग किया था, और हम लोग देख रहे थे, लेकिन वो क्वालिटी जो थी इंटरनेट के कारण, मुझे लग रहा था यार इतनी खराब क्वालिटी, व्हाई वुड पब्लिक गो फॉर दैट। बट देन 15 16 17 तक आते आते तो क्वालिटी हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट। फिर भी एक थोड़ा सा डाउट था, बिकॉज एक बार पहले उसी तरह का सिमिलर एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। बट आई थिंक 17-18 में जब मिर्जापुर एंड सेक्रेड गेम्स, जो दो पहली सीरीज थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी,
I also saw them and then I realized कि नहीं, this is here to stay. And season 2 तो मैंने भी खुद कर लिया मिर्जापुर का, तो I was like it should stay, it should not go anywhere. Oh my god, ऐसा ब्रैग करना है मुझे. Like फर्स्ट वाला पसंद है, सेकंड में हम ही आ गए. Amazing, sir. So that's when you, after watching the first one, that's when you know. हाँ, मतलब I saw Sacred Games, I saw मिर्जापुर, because उस समय दो ही बड़े यही बने थे. Then Inside Edge मैंने देखा था उस समय. Cricket. हाँ, which did not do that well initially, बाद में it picked Picked up. up. तो ये दो तीन चीजें मैंने इनिशियली देखी थी, बिकॉज उस समय बहुत सारे बिग प्लेयर्स नहीं थे. मतलब इनफैक्ट उस समय सिर्फ बिग प्लेयर्स ही थे जो बड़ा बना पा रहे थे. छोटे छोटे जैसे आजकल अभी बहुत तरह का कंटेंट बन रहा है, उतने लोग नहीं थे. Is there a shift in terms of performance? आपने ऑडियंस के बारे में बता दिया कि उनको ज्यादा कंटेंट देखने मिलता है, सेम कंटेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने मिलता है. बट नाउ कमिंग बैक टू द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स, फ्रॉम आवर लेंस, इज देयर एनीथिंग डिफरेंट देन सिंस द इंसेप्शन ऑफ ओटीटी? देयर इज अ लॉट. पहले जैसे मैंने बोला कि टीवी था, टीवी में भी सोप ओपेरास थे और या तो फिर फिल्म्स थी. फिल्म जो कि पोस्ट 2000 थोड़ा सा रियलिस्टिक जोन में, या थोड़ा फिल्मी जो हम एक टर्म यूज करते हैं, कम फिल्मी, जो मोर रियल फिल्म जो थी. पीपली लाइफ थी, दिल चाहता है, देन थोड़ा आगे जाके रिलेटेबल, नॉट वासीपुर आई, जिसमें नॉट जस्ट द स्टोरी लाइन बट द कैरेक्टर्स वर रिलेटेबल एंड द परफॉर्मेंसेस वर आल्सो नॉट जो हम एक यूज्ड टू थे 70s और 80s का सिनेमा देखने. नॉर्मली बातें हो रही थी. वासीपुर जो थी कि बहुत नॉर्मली बातें हो रही हैं उसमें, जिस तरीके से आप घर में बात कर रहे हो. इन बिटवीन व्हाई क्राइम पेट्रोल आल्सो बिकेम दैट पॉपुलर वाज बिकॉज जिस तरह का कंटेंट हम आज ओटीटी में देख रहे हैं, टीवी में क्राइम पेट्रोल में उस तरह का कंटेंट आपको मिलता था. That's correct. जहाँ रिलेटेबल कैरेक्टर्स रहते थे. डेली सोप के एकदम बिस्तर से सो के उठने पे भी पूरे मेकअप किए हुए कैरेक्टर्स नहीं रहते थे. वो लोग 200-500 करोड़ की बात नहीं कर रहे होते थे. तो वो बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर जो आपके घर के पड़ोस में हैं, आपके घर में आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, प्लस बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस. दैट वाज अ मेजर रीजन कि क्राइम पेट्रोल पॉपुलर हुआ. और अनदर रीजन कि क्राइम पेट्रोल के मैक्सिमम एक्टर्स ओटीटी में काम कर रहे हैं, बिकॉज ओटीटी वही चीज लेके आया, रिलेटेबल स्टोरीज, रिलेटेबल कैरेक्टर्स, जो आपके नेक्स्ट डोर वाले या आपके मोहल्ले के या आपके शहर के लोग जो दिख रहे हैं, और कहानियां भी उस तरह. सो वो एक शिफ्ट आया. परफॉर्मेंसेस जो थे बहुत ज्यादा रियल, कि भाई आप जरा नहीं सर, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये गुस्सा कम कम कर दीजिए. बिकॉज सी, एट द एंड ऑफ द डे आपका सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है क्या लिखा हुआ है, क्या स्टोरी है, क्या सेटअप है, उसके हिसाब से. अब जब इतनी रियल सेटअप में स्टोरी जानने लगी तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस, बाकी सारी चीजें, आपका प्रोडक्शन डिजाइन, आपका म्यूजिक, सारी चीजें जो थी वो उसके हिसाब से रियल होती चली. नेचुरल जोन में बहुत ज्यादा आ गया. तो वो एक थोड़ा सा शिफ्ट डेफिनेटली है. एंड फॉर द गुड, फॉर द गुड, फॉर द गुड. सी, जो जिसको हम लाउड परफॉर्मेंस बोल लें या फिल्मी परफॉर्मेंस बोल लें या स्लैपस्टिक भी कहीं जगह पर हम अगर यूज कर लें, उसके अपने मजे हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं. हम सब गुंडा देखते हैं, क्रिंज के लिए देख रहे हैं, पर हम देखते हैं. एंड प्रियदर्शन का जो कंटेंट है, हेरा फेरी का जो कंटेंट है, बहुत लाउड वो था, बट वो कैरेक्टर, बिकॉज वो सेटअप वैसा था, वो स्टोरी उस तरीके से लिखी हुई थी. रिचार्ज में ही हमारा जो प्ले है उसमें हम कितना सारा ओवर द टॉप करते हैं, बट बिकॉज वो जस्टिफाइड लगता है वहां. तो उसका अपना मजा है. ये जो रियलिस्टिक कंटेंट जिसको बोल रहे हैं या नेचुरल एक्टिंग बोल रहे हैं, इसका अपना मजा है. दोनों ही चीजें. कोई कहानी रहती है जिसमें राक्षस रहता है, ड्रैगन रहते हैं, उसमें परियां रहती हैं, तो हम वो उस तरीके से सुनाते हैं. कोई स्टोरी रहती है कि एक बच्चे की कहानी जो स्कूल जा रहा है उसका, तो हम वैसे सुनाते हैं. एग्जैक्टली सेम हम उसको कैमरे पे शूट करके दिखा रहे हैं या फिल्म स्क्रीन पे दिखा रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चेंज होता जाता है. और वो होना चाहिए ताकि एक वैरायटी रहे. अगर सारा रियलिस्टिक ही सिनेमा रहेगा तो एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाओगे. क्या कुछ आई वांट टू सी सम लार्जर देन लाइफ थिंग, सम फैंटेसी, कुछ फिक्शन, पार इमेजिनेशन की भाई ऐसा जो, अरे ये तो सोचा ही नहीं था हमने. तो वो हर तरह का रहना चाहिए, सही क्वांटिटी में रहना चाहिए. अगेन डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी, कोई किसी स्टोरी की डिमांड कुछ रहती है, किसी रहती. एंड आर देयर एनी ड्रॉबैक्स टू द शिफ्ट दैट वी हैव सीन के ओटीटी से चलो बहुत अच्छी चीजें आई हैं, बट हैव वी लॉस्ट समथिंग गोल्डन बैक देन व्हिच वी फेल टू सॉर्ट ऑफ डिजिटलिफाई? मोर देन ओटीटी, जो मैं बोलूंगा डिजिटल के कारण जो चीजें थोड़ी सी हुई हैं विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्या हुआ है कि जो एक एक्सपर्टीज जो रहती थी, कि अगर इमेजिन शूटिंग अ मुगले आजम और शोले ऑन अ कैमरा जिसमें रोल है और जिसमें ऐसा है कि हर
मीटर के, हर मिनट के, आपके हर सेकंड के पैसे लग रहे हैं। एक भी रीटेक अगर होता है, एक भी गलती होती है, कॉस्टिंग मनी। विदाउट मॉनिटर आप सिर्फ आईपीस में देख के वो पूरे सीक्वेंस से शूट कर रहे हो, एंड इट इज जस्ट द कैमरामैन्स नो हाउ एंड हिज टैलेंट कि आउट ऑफ फोकस गया है कि नहीं गया, या कहीं पे आउट ऑफ फोकस हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास मॉनिटर भी नहीं है चेक करने के लिए। आपने कैमरे में उसने सेट किया और कैमरे में ही वो देख रहा है और उसी में उसको गेज करना है। सो टेक्निकली दोज मेन वर फार मोर टैलेंटेड एंड एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, बिकॉज उनके पास रीटेक के भी ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। अभी हमारे पास डिजिटल होने के कारण क्या है कि हम थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि अरे चल ठीक है, खराब हो ना, अगला ले लें। तो वो जो एक काम में एक जो जिसको बोलना चाहिए फिनेस तो ठीक है, लेकिन जो एक डेडिकेशन जो ज्यादा होता था कि हर चीज 10 बार चेक करो, बिकॉज जहां कैमरा रोल हुआ, पैसे लगना चालू हो रहे हैं, तो अब एक भी पीछे एक बोतल रखी हुई है या एक कचरा पड़ा हुआ है या फ्रेम में कोई आदमी एंट्री करने वाला है, Can't afford. वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कई सारी फिल्मों में बहुत अच्छा सीन चल रहा है लेकिन पीछे कुछ डिस्ट्रैक्शन या कुछ आदमी घूम रहा है या कुछ हो रहा है, बट दे कुड नॉट अफोर्ड बिकॉज इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, फिर से नहीं हो पाए। तो वो एक जो चीज थी। दूसरा, ओटीटी आने के कारण एक तो इजी एक्सेस जो हुआ है कि भाई हर कोई बना सकता है, आप सस्ते में बना But सकते that's हो। a good thing, no? इन अ वे इट इज गुड थिंग, बट उसके कारण क्या होता है कि मार्केट जब एक खुलता है Hmm. तो पहले ऐसा रहता है कि भाई सड़क पे सिर्फ दुकानें रहेंगी, तो उसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि भाई जो दुकान का सामान बेच रहा है तो उसके पास एक क्रेडिबिलिटी है, आई कैन कम बैक टू हिम कि भाई ये तूने क्या बना के दिया। Bravo. डिसएडवांटेज ये रहता है कि भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वही दुकान खोल सकता है। मैंने बोला यहाँ पे जिसको दुकान लगानी हो लगा सकता है, तो अब सड़क पे आपके हॉकर्स भी बैठ गए। अब उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए, चीजें सस्ती हो गई, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी जो है, एक Quality. क्वालिटी जो है, वो कौन अच्छी दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, फिर वो इंडिविजुअल आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हो सकता है मैं आज सामान खरीद के गया, कल वापस आए वो आदमी वहां पे है ही नहीं, तो मैं किसको बोलूंगा? द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग क्रिएटेड इज जस्ट टू गेट आईबॉल्स, Clickbait वाला मामला हो। क्लिकबेट टाइप का, अगर नॉट टू लास्ट लॉन्ग, या कोई ऐसी चीज की भाई जो लोग याद रखें कि यार बहुत अच्छा बना है। लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, लॉट ऑफ एक्टर्स आर गेटिंग वर्क व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। टेक्नीशियंस को बहुत सारा काम मिल रहा है बिकॉज बहुत काम हो रहा है। एक और फायदा ये हो रहा है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको सीखने के लिए बहुत सारा पहले क्योंकि बहुत लिमिटेड काम होता था, तो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर या एज अ ट्रेनी ज्वाइन करने के लिए आपको जगह नहीं मिलती थी। अब वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, बट अगेन वहीं पे कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज स्टिल समथिंग दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन एंड वर्क ऑन। ये जो आपने मार्केट वाला एग्जांपल दिया ना, उससे मैं बौखला गया। आई मीन व्हाट ग्रेट ग्रेट रेफरेंस। सर जी, मुझे आप थोड़ा थोड़ा चीजी क्वेश्चन है, हाँ, बट ऐसी कोई लाइन है आपके पास्ट कैरेक्टर्स में जो आपके साथ रह गई, विच यू लव? वो आपके प्लेराइट्स की भी हो सकती हैं, ऑन स्क्रीन हो सकती हैं। यार एक्चुअली बहुत सारी लाइन है, हर कंटेक्स्ट के हिसाब से अलग लाइन कहीं यूज हो विच जाती है। स्टेड विथ यू एंड परहैप्स मे बी स्टिल डज, और मे बी चेंज्ड यू फॉर द बेटर। इंस्पेक्टर पांडे में एक लाइन लिखी थी मैंने कि वो इंस्पेक्टर जो ऑडियंस से बात कर रहा होता है, तो हिज लाइन इज की पावर आते ही हर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है। गांधी दुनिया में एक था, एक ही है, बाकी तो हम भी आपकी तरह इंसान है। नॉट एग्जैक्टली पावर, बट इवन इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर एट एन एडवांटेज, make sure that you don't harm anyone, or Your not, demeanor is हाँ, higher. your demeanor is respectful and respectable rather than being pricey and egoistic. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको कोई चीज अनलर्न करनी पड़ी हो, और इट्स लाइक अ मसल मेमोरी टू यू, भले डिसिप्लिन और समथिंग फॉर अ कैरेक्टर ऑब्वियसली, और मे बी टू एडजस्ट विद द चेंजिंग शिफ्ट, और फॉर वट एवर रीजंस, यार आज तक मैं ये करता था बट आई नीड टू चेंज माई वे ऑफ वर्किंग, समथिंग लाइक दैट? Not exactly the way of working, but हाँ, there are certain things that जब मैंने काम करना शुरू किया, when I started working on camera, तो I realized certain mannerisms or certain reactions that I give, or in a certain demeanors or gestures that I have, वो मैंने देखे और मुझे लगा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ये इट इज नॉट लुकिंग गुड ऑन कैमरा। बिकॉज कैमरा पे एक और चीज ये भी रहती है कि आपको विभत्स भी अगर आपको दिखना है तो आपको अच्छा विभत्स दिखना है। कैमरे के लिए वो एक चीज रहती तो है। विभत्स क्या होता है प्लीज? विभत्स जो एक रस होता है, जो 9 रस होते हैं उसमें, और राज के एक पिछले वन ऑफ द इंटरव्यूज में अक्षय आनंद कोहली आए थे, वो एक बहुत अच्छी वर्कशॉप भी लेते हैं 9 रस के ऊपर। तो विभत्स एक रस होता है जिसमें, जिसको हम सिंपल टर्म्स बोले तो जिस चीज को देख के घिन आती है,
इतनी बुरी या इतनी गंदी चीज है कि जिसको देख के आपको घिन आती है, तो उसको उसके लिए एक टर्म यूज होती है विभत्स। तो वो कैमरे पे वो भी सिनेमैटिक दिखना चाहिए। द डर्टीएस्ट ऑफ थिंग्स आल्सो नीड टू लुक सिनेमैटिक ऑन कैमरा। मेरी बहुत फास्ट बोलने की आदत थी, तो मैं अगर लाइंस भी अपनी बोलता था तो इनिशियली मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल देता था, डायरेक्टर को बोलना पड़ता था भाई थोड़ा सा स्लो डाउन कर, तो वो एक चीज जो थी वो मैंने की। उसके अलावा हाँ, आई थिंक मोरलेस। So nothing direct related to changing trends. I am a very flexible person and a very simple person, तो ऐसे मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मेरे नेचर के पार्ट में ऐसा कुछ था नहीं कि इतना रिजिड था कि बाद में मुझे बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ा। उसका आई थिंक एक रीजन ये भी था कि मुझे कभी एक्टिंग लाइन में जाना नहीं था इनिशियली। नहीं तो अगर मैं शुरू से ही हीरो बनने के बाद, क्योंकि अगर आपके घर में थिएटर का कुछ बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ एक्सपोजर है, तो आप एक्टर बनने की सोचोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी ऐसी जगह से आए हो जहां आपको एक्टिंग का कोई एक्सपोजर नहीं है लेकिन आपको ग्लैमर का एक्सपोजर है, तो आप हीरो बनना चाहते हो। तो फिर मेरा जो सारा हाव भाव सब रहेगा, मेरे बाल में हीरो की तरह, कपड़े मेरे हीरो की तरह, स्टाइल में एक अपना लूंगा कि यार मैं एक स्टाइल सबकी है तो मैं भी एक रखता हूँ, तो आई विल डू दिस। देन इफ आई हैड कम एंड दे वुड हैव टोल्ड मी कि नहीं भाई ये गरीब कैरेक्टर है, मजदूर कैरेक्टर है, ये ऐसा इतना स्टाइलिश नहीं होगा, इसको छोड़, तो प्रॉब्लम हो सकती थी। बट हाँ। बिकॉज आप एक आम जिंदगी जी रहे थे, एक नॉर्मल इंसान, ये जरूर है कि जब कभी आपको बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट अगर जैसे मुझे बनना होता है या मुझे बहुत एरोगेंट या कॉकी कैरेक्टर कुछ करना पड़े, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी Comfort zone के- कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है कि यार आई हैव टू बी रूड टू समवन। And with the changing trends, जैसे पहले सिनेमा था, अभी OTT आ गया है. Where do you see it going? अभी आगे क्या? आगे शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट जो है वो और बढ़ता चला जा रहा है। अभी जैसे वर्टिकल्स जो है, माइक्रो सीरीज, माइक्रो सीरीज बोल रहे हैं, माइक्रो ड्रामा बोल रहे हैं, वर्टिकल्स बोल रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे आना शुरू हो गए हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। आपने अक्षय का देखा? सॉरी बट मैंने अक्षय वाला देखा, अनमैच्ड, जरूर देखिए, अमेजिंग सीरीज। तो वर्टिकल्स इज द न्यू थिंग, एवरीवन इज मेकिंग इट, लॉट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर स्टार्टिंग अ सेगमेंट स्पेसिफिकली फॉर वर्टिकल्स, तो उन पे बहुत सारा वर्टिकल शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट मिलेगा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आएगा। अगेन द होल स्टोरी टेलिंग प्रोसेस बोल लो, फिल्म मेकिंग प्रोसेस बोल लो, इज बिकमिंग इवन मोर डेमोक्रेटिक, कि अब आप अपने घर में बैठ के सीरीज बना सकते हो अपने मोबाइल पे शूट करके। बट अगेन उसमें भी एक चीज रहेगी, फिर हर कोई बनाएगा तो फिर फिगर आउट करना कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, वो एक दिक्कत का काम हो जाएगा। pros and cons. It comes with pros. So just like you see reels on Instagram, depending on the kind of content you're used to consuming, वो उसी तरीके से आपको फीड देता चला जाएगा। तो उसमें एक फायदा ये होगा कि जिस तरह का कंटेंट आपको पसंद है वही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि सिर्फ उसी तरह का कंटेंट मिलेगा। तो वो एक वैरायटी ढूंढने का जो एक टास्क रहेगा कि यार कौन सा अच्छा कंटेंट है, वो वर्ड ऑफ माउथ पे ही रह जाएगा फिर से कि भाई Recommendation. किसी ने किसी को बताया कि अरे ये देखा क्या, वो देखा क्या, एंड दैट्स हाउ इट इज। नाउ द ओनर्स इज ऑन द मेकर्स की अच्छी फिल्में, अच्छा ओटीटी कंटेंट बनाए, सो दैट दे कैन गेट द ऑडियंस बैक टू लॉन्ग फॉर्मेट। Okay, to get them back to, क्योंकि Back them. यही मैं आपको पूछ रहा था, because as performing artists, as even the makers, eventually आपको फोन के तो बाहर ही आना है। Eventually we want the people to come back to the cinemas, जो कि बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। दूर है। But if we make them get so used to this, they will never come out of it. Exactly. So the whole crux of it is to get them out of this, right? Get them back to theaters. पर इसमें तो हम अडिक्ट कर रहे हैं ना। ये वो वाला एडिक्शन है जो रेडियो ने फेस किया होगा जब टीवी आया था, टीवी ने फेस किया जब इंटरनेट आया था, अब टीवी और फिल्म वाले फेस कर रहे हैं, मोबाइल आया है। तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि इनिशियल स्टेजेस में जो एक ऐसा लगता है कि अरे तो एग्जिस्टेंस को खतरा हो रहा है, वैसा होगा। लेकिन ऑब्वियसली जो को एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आएगा, कम होगा ज्यादा होगा, दैट वील हैव टू सी, बिकॉज दैट विल टोटली डिपेंड ऑन कि किसके पास अच्छी कहानियां हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी कि वो ध्यान हटा के उधर देखे कि अरे यहाँ कुछ हो रहा है, चलो लेट मी गो टू द बिगर स्क्रीन, because most of the OTT content is also being consumed on mobiles nowadays. Yeah, ट्रांजिट में, ट्रैवलिंग में, उसमें भी बहुत सारा हम जो बना रहे हैं वो उन चीजों को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि भाई मोबाइल पे देख रहा है आदमी तो कितनी देर उसका अटेंशन रहेगा, उसमें मुझे किस तरह की चीजें डालनी है कि उसका अटेंशन बना रहे, किस तरह की चीजें डालनी है कि वो इन ट्रांजिट या ट्रेन में ट्रेवल करते हुए बस में बैठे बैठे भी देख रहा है, एंड येट ही इज एबल टू ग्रास्प इट। मतलब स्टोरी टेलिंग जो है वो more than being about concepts and
स्टोरीज और फैंटेसी a lot is being driven by the human psychology कि किस सिचुएशन में आदमी कैसे बिहेव करता है तो उसको उस समय एक स्टोरी कैसे दिखानी है. Ouch. But that's not great for art, no? देखो यार, आर्ट तो हर नए समय में इवॉल्व होता है और कुछ नया एक फॉर्म ले लेता है. तो what comes out of it will be an art form, whether we like it or not. Maybe the people who are consuming it might like it. Liking or not is a matter of perspective. It's personal choice. वो हो जाता है. Wow. Okay, so a small set of rapid fire we have for you. One skill, regardless of time and trends, which was relevant then, also it's still relevant. Storytelling. Storytelling, which we already covered. Great. One lost practice you want to bring back. Lost practice. Discipline. Ouch. Is social media presence important आज की तारीख में? Yes. For all the performing artists, regardless. It is. Biggest hope and biggest fear for the film industry going forward? Biggest hope is that every film that is released from today onwards is a big hit. Biggest fear is that all those hits, I'm not there in that. So I'm hoping that I'm there in all of them. No, but the biggest, not biggest fear, but concern, I'd rather call it a concern that we need to up our content and storytelling game. We need to come up with good stories instead of concepts based on marketing surveys. Got it. One skill you wish you had which you still don't? Dancing. मुझे क्यों पता था आप यही बोलोगे? Beyond acting, what are the things that keep you grounded? My wife, my upbringing, parents, and a little bit of my nature. Oh wow. What do you prefer? Which wording? Hindi film industry or Bollywood? Hindi film industry. Why not Bollywood? See, Bollywood is a name जो कि ऐसा रहता है कि यार भाई पड़ोस वाले के बेटे का नाम रमेश है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो चलो अपने बेटे का नाम सुरेश रख देते हैं, थोड़ा तो अच्छा काम करेंगे. Hollywood, Bollywood. Bollywood. Not like it is an industry or it's a technical term. It's the name of a city. Hollywood is the name of a place जहाँ पे फिल्में बनती हैं. मतलब Hollywood industry बोलने लगे हैं, but it's not a film industry or anything like. Why not call it a Hindi film industry, Marathi film industry, Bhojpuri film industry, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, all of that. Hindi film industry. Hindi film industry. एक हम सेगमेंट रखते हैं मिथ बस्टर्स, Okay. जो कि पॉपुलर नोशंस हैं बट वी वांट टू ब्रेक देम. ओके. Right. One misconception you had about acting which was shattered when you started working on sets? That it is very difficult. It's not? No. Acting is not difficult. The Wow. process before it is very difficult. Once you get on, if you're prepared and then you get in front of the camera, it's piece of cake. And I am done with all my set of questions, but before we leave, would you like to share some piece of wisdom with everyone who is up and coming in the performing arts world? See, in my introduction, you called me a veteran. Sarji, aap So I will, as this famous Sunscreen song by Buzz Luhrmann, where he says that advice is a piece of nostalgia, which the older generation shares with the younger generation. So I'll just tell everyone that whichever field you want to work in or whatever you want to do, if there is some sort of or any sort of learning required, learn, study, practice, and then just do your thing and don't worry about what is the outcome. जो होता है अच्छे के लिए होता है is my philosophy of life. जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा. If you believe in that, if you just go with the flow of life, don't try to resist, because destiny will take you wherever you're supposed to go. Problem is we start questioning the ways and means कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा. Just go with the flow, and I can vouch for it because मैंने खुद वो चीज जी है. मैं कहाँ जाना चाहता था, किस फील्ड में जाना चाहता था और मैं आज कहाँ हूँ. एंड दैट इज जस्ट डेस्टिनी. और हर एक चीज जो हुई है उस समय मुझे अच्छा बहुत लगा या बहुत बुरा लगा. बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता. अगर मैं आर्मी में होता तो मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात नहीं कर रहा होता. आई वुड नॉट हैव मेट हिम and many more wonderful actors like him who I've worked with. I would not have met my wife Sheetal if I was there. Or again, if I was destined to marry her, कहीं ना कहीं से मुझे वो पहुंचा देती. As again quoting अक्षय का एक प्ले की लाइन जो हम लोगों ने साथ में किया था, एगो कट्टे, कि रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. सो मंजिल पे फोकस रखो और अपना काम करते रहो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं.
Wow, on that piece of wisdom, we will put an end to our episode today. Thank you so much, Sarji, for coming and gracing us with So your wonderful talking to you. So that was a wonderful journey of persistence, adaptability, and the ever evolving scenario of performing arts. From theatre to television to OTTs to cinema and now to micro series. I hope you found value in this, and if you did, please subscribe to We Are Art, like, comment, and press the bell icon so that you get the notifications. And don't forget to join us in the next episode, which is equally exciting. So see you there. Bye.